Good morning, all. Am I audible? Yes, sir. Can you see the screen? Yes, sir. Good morning, sir. What is visible? Introduction. Memory is a simple device that can be used to store the information. So today we'll be studying that the second unit is more about interfacing the memory with microprocessors, and today before interfacing the memory with the microprocessor, we need to understand what the memory is all about. See, there are multiple kind of memories which can be interfaced with these microprocessors. Almost every memory is a semiconductor memory, which is made up of basic MOSFETs. You call it CMOS, CMOS technology. These days, it is being made up of FinFET technologies. I hope you understand the meaning of CMOS, complementary metal oxide semiconductors. Yes, so these memories are the simply devices which are used to store the information. Now, storing the information in itself has three different measures. One is that whatever data the memory has, it should be able to hold it. Point number two, if it has a certain kind of a data, it should be able to change it. Means writing on a memory cell. Third, in any case, if we have the data stored in the memory, it is stable. In any case, if it is a memory and the data is stable, then you should be able to read the data. Fine. Now, these memories are extensively used because of their small size, low cost, high speed, high reliability, and ease of expansion. Small size or the bigger size depend upon the kind of application that you want to implement with the help of microprocessor. Let me give you an example that the size of a memory is much smaller that you require inside a mobile phone than the size of a memory that you will require inside a calculator or inside a you call it a washing machine or maybe a automobile. Fine. In an automobile or in any of the appliances, you may afford a bit higher size. Higher size means I'm talking about the physical dimensions. I'm not talking about the memory capacity. Right? Higher dimensions you can afford in case of these memories. However, in the sophisticated devices, which are these days you are using most of the IoT devices or devices that can be operated over internet. You say if you have the devices of mobile phone or that can be operated through your laptops, you do not want the size or the weight of the memory to be higher. And believe me, in a memory, there is a problem when someone, if you read some of the research papers of the memories, fortunately, my whole research has gone on the memories only. The memories have a particular aspect that as you try to reduce the supply voltage, because supply voltage is required for whatever power they consume. If you try to make your memory power efficient, if I talk in a simple words, if you try to make your memory power efficient, it starts becoming slow. So, what an engineer is supposed to do, engineer is supposed to make the smaller size. You need to make the trade-off between the smaller size, trade-off between getting that low power, and yet the performance or the speed should be good also. These all are the terms which are written that it should be of the small size, low cost, high speed, high reliability, and ease of expansion. These all are the idealistic terms
Believe me, when it comes to the fabrication of the memory, these all things are together impossible. These are not possible at all. You can choose 1 or 2 or 3 out of these 4 or 5 parameters that you can optimize. I'm not saying that you can maximize. The word I'm using is that you can optimize. You can optimize 2 or 3 of the parameters, and rest of the parameters are bound to expand as far as the trade-off is concerned. It consists of mainly flip-flops and some additional circuitry such as buffers. I won't use the word buffer. Memory basically consists of a latch inside. I hope you people understand the difference between latch and a flip-flop. Can anyone please tell me what is the difference between latch and a flip-flop? Any one of you? What is the difference between latch and a flip-flop? See, the flip-flop is the one which is impacted by whose data which is inside the flip-flop is impacted by the external inputs. However, in the latch, external inputs do not work unless you allow it. So in the memories, there are generally latches which are being used instead of the flip-flops. Now, what is the memory capacity? क्या होती है memory capacity? Memory capacity is basically the size of a memory. You call 64 kilobytes, 32 kilobytes. Fine. And this memory capacity is always in the range of 2 raised to power n. It cannot be 57 kilobytes. It cannot be 35 kilobytes. It will be 16 KB. It will be 32, then 64, then 128, anything that exists with 2 raised to power n. And yes, if I do not have, suppose what I can interface with the microprocessor is 8K memory. So yes, you can use 2 4K memories unless your microprocessor should allow the interfacing of a decoder, or it inherently contains a decoder. I'll let you know decoder किस तरह से काम करता है. डिकोडर के बिना मेमोरी को अलग अलग आईसीज को इंटरफेस करना पॉसिबल ही नहीं है. ये ऐसे ही है जैसे आपके पास घर पे पुराने टाइम में, पता नहीं आप लोग यूज करते हैं कि नहीं, डेस्कटॉप हुआ करते थे. उन डेस्कटॉप्स के अंदर जो रैम लगती थी, उस रैम के अंदर 2 स्लॉट्स हुआ करते थे. लोग कहते थे कि आपके पास कितनी रैम है. पहले आपको पता नहीं, अब तो फोन्स के अंदर 4 GB और 8 GB रैम्स आती हैं. उस टाइम पे जब when I started using the computer in 2001, 256 MB RAM was very high RAM. Believe me, 256 MB RAM was, people used to call, 256 MB RAM है आपके सिस्टम में. So अगर मुझे suppose my system is carrying 128 MB of the RAM, उसमें एक सेकंड स्लॉट भी होता था जो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस्ड होता था. उस सेकंड स्लॉट में आई कुड पुट इन अनदर 128 MB टू इंक्रीज माय स्पीड ऑफ माय सिस्टम. इवन टुडे सिस्टम, आपके पास जो स्लॉट्स होते हैं उसमें आप 4 GB या 8 GB की 2 रैम्स लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ योर प्रोसेसर. आपका प्रोसेसर उसको अलाउ करता है या नहीं करता. और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोसेसर के साथ किसी भी रैम को इंप्लीमेंट कर देंगे. मार्केट से कोई भी रैम परचेज करने के लिए जाओ तो आपसे वेंडर आपसे प्रैक्टिकली पहला सवाल ये पूछता है कि किस फ्रीक्वेंसी की चाहिए. रीजन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर मेमोरी शुड मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर प्रोसेसर. सो जब भी आप मार्केट में मेमोरी SRAM लेने के लिए जाएं, यू शुड बी अवेयर कि आपको कितनी फ्रीक्वेंसी की रैम चाहिए. वो आपके मदरबोर्ड के मैनुअल पे स्पेसिफाइड होता है.
if you have ever read it. Am I audible? Is everyone available listening? Yes, sir. Great. So these are the basic things that you need to study. अगर ये चीज प्रैक्टिकल दिमाग में है कि सिस्टम में किस तरह से काम करता है, तो इसके अंदर जो भी कुछ ये ब्ला 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 लिखा हुआ है, you are easily able to grab it, or you can easily understand from your book what the author is trying to say. Memory chip contains 2 raised to power n locations, where n is the number of address pins on a chip. Means suppose आपके पास अगर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एड्रेस पिन 16 है, तो आपका जो मेमोरी का मैक्सिमम परमिशिबल साइज होगा दैट विल बी 2 raised to power 15. 0 to 15 means, ठीक है, this is what is written, that if you have number address line 16, that then you will be having the memory size of 2 raised to power 15 that can be addressed. That is somewhat comes around 64K, which is 65536, I suppose, are the total number of locations that can be addressed. हर एक लोकेशन के ऊपर आप एक बाइट को एड्रेस कर सकते हो. सर अगर एड्रेस पिन 16 है तो 15 क्यों होगा फिर? Because it is counted from 0 to 15. एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन को तो 0 नहीं बोलते ना, वो तो न्यूमेरिक में काउंट होता है कि एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3. हाँ, इफ यू स्टार्ट रीडिंग एड्रेस लाइन 0, अगर मैं बोलूंगा एड्रेस लाइंस 15 है, तो 15 एड्रेस लाइंस का कोई मतलब नहीं होता बेटा. एड्रेस लाइंस भी आपके पास 2 raised to power n की कैपेसिटी में चलती है माइक्रो प्रोसेसर में, तो मैं बोलता हूं कि 16 एड्रेस लाइंस होती हैं. बट जो आपके पास काउंट होता है एड्रेसेस, दैट इज फ्रॉम A0 to A15, ये 16 एड्रेस लाइंस हुई. व्हाट द पॉइंट? ओके सर. आपके पास जो लोकेशंस होती हैं, ये 2 raised to power n है, दैट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 2 raised to power 0. ओके. यानी एक लोकेशन, अगर एक एड्रेस लाइन है तो दैट कैन एड्रेस ओनली 1 लोकेशन, दैट्स इट. ईच लोकेशन कंटेन m बिट्स. अब m बिट्स को आप लगा लो, मैं बोल रहा हूं कि हर एक लोकेशन पे एक बिट एड्रेस एक बाइट एड्रेस होता है, यानी कि 8 बिट्स. अब जो पुराने प्रोसेसर्स होते थे, जो स्टार्टिंग में आए थे, उसके अंदर पूरा बाइट नहीं चलता था एड्रेस में, उसके अंदर निबल चलता था, 4 बिट का एड्रेस. तो जो टोटल बिट्स एड्रेस हुई वो हुई 2 raised to power n मल्टीप्लाइड बाय 4 बिट्स. उसके बाद आपका 8 बिट प्रोसेसर आया, 885, तो वो लोकेशंस हो गई 2 raised to power n क्रॉस 8. फिर 16 बिट प्रोसेसर आ गया, तो आपके पास लोकेशंस होगी 2 raised to power n क्रॉस 16. अगर कभी फ्यूचर में डबल वर्ड प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलेगा, तो यू विल हैव नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी एड्रेसेस 2 raised to power n क्रॉस 32. बात समझ आई? नहीं आई? ये जो m है बेटा, ये देखो, ये समझ आया कि आप कितने एड्रेसेस को लोकेट कर सकते हो. सपोज आपके पास 16 एड्रेस लाइंस हैं, तो यू कैन एड्रेस n-1 मान के चलो, यू कैन एड्रेस 0 to 15 लोकेशंस. लोकेशन 16 ही हुई, बट दैट कम्स टू 2 raised to power 15. और कितने बिट्स हुए वो डिपेंड करता है कि हर एक एड्रेस कितने बिट का है. अगर वो 4 बिट का है तो 2 raised to power n क्रॉस 4. अगर वो 8 बिट का है तो 2 raised to power n क्रॉस, एक सेकेंड, लेट मी शो यू समथिंग दैट कैन बी, 15 होता है 64K. अभी इसको आप कैसे लेकर चलोगे? दिस विल बी considered in such a way that 64K is
What is 64K? 64K is 65536. ठीक है, इतनी लोकेशंस हैं. अब ये 65536 लोकेशंस कैसे होंगी? These locations will be of the type first location 0, second location 1, then 2, then 3, and up to 65536. Rather 65535 it should be, because it is starting from 0. तो जो आपकी 0th लोकेशन है जिसको आप फर्स्ट लोकेशन बोलते हो, क्वेश्चन ये है कि इस लोकेशन पे आप स्टोर क्या कर रहे हो? आप क्या इस लोकेशन पर, इसी एड्रेस लोकेशन पर एक बिट शेयर कर रहे हो? वर्ड शेयर कर रहे हो? डबल वर्ड शेयर कर रहे हो? व्हाट द पॉइंट? निबल. सर थोड़ा एक बार ये रिपीट कर दो सर. मैं ये कह रहा हूं कि आपने 65536 लोकेशंस हैं. आप उन लोकेशंस को भूल जाओ. कितनी लोकेशंस आपको पता है? 2n-1 लोकेशंस होंगी. यू कम डाउन टू कि आप जो फर्स्ट लोकेशन है, आप उस फर्स्ट लोकेशन पे शेयर क्या कर रहे हो? एक बिट शेयर कर रहे हो, एक बाइट शेयर कर रहे हो, निबल शेयर कर रहे हो, वर्ड शेयर कर रहे हो, डबल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आपके जो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, उस लोकेलिटी में जितने भी फ्लैट्स हैं, सपोज जितने भी हमारे इधर तो फ्लैट्स नहीं होते, होम्स होते हैं, तो जितने भी हमारे यहाँ एक लोकेलिटी के अंदर घर हैं, उन सब घरों के अंदर कितने लोग रहने अलाउड हैं? फॉर एग्जाम्पल, सब घरों का साइज सिमिलर है, जिसके अंदर 2 कमरों का एक घर है और उसके अंदर सिर्फ 4 लोग ही रह सकते हैं. गॉट द पॉइंट? तो अगर वहां पर 10 घर होंगे तो कितने लोग रहते हैं? 40. अग्रीड? कि अगर एक अंदर 10 घर हैं और हर घर में 4 लोग ही रहने अलाउड है, तो 40 लोग रहते हैं. घर का अगर साइज बड़ा हो और उस घर के अंदर 8 लोग अलाउड हो जाएं, तो उस लोकेलिटी में कितने लोग रहेंगे? 80. नाउ यू टेल मी वन थिंग, क्या 40 की जगह 80 लोग हो गए तो जो घरों के एड्रेस हैं वो 10 से 20 तो नहीं हो गए? No, sir. ठीक है. इसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर के जो एड्रेस लाइंस हैं वो एड्रेस प्रोवाइड करती हैं. उस एड्रेस के ऊपर एक बिट स्टोर हो रहा है, एक निबल स्टोर हो रहा है, एक बाइट स्टोर हो रहा है, एक वर्ड स्टोर हो रहा है, एक डबल वर्ड स्टोर हो रहा है. ये टेक्नोलॉजी डिफाइंड भी हो सकता है, ये यूजर डिफाइंड भी हो सकता है, ये कंपनी डिफाइंड भी हो सकता है. बात समझ आई? लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एड्रेस लाइंस तो इतनी हैं कि आप 2⁻20 तक जो है वो शेयर कर दोगे, 1 MB शेयर कर दोगे. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपके पास डेटा लाइंस कितनी है? क्योंकि ये जो बिट, निबल, बाइट, वर्ड का साइज है मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है डेटा लाइन के ऊपर. ठीक है? जिस साइज को डेटा लाइन अलाउ करती है
उसी साइज को, ऐसा नहीं है कि आपके पास डेटा लाइंस 8 हैं और आप सोचो मैं डबल वर्ड को एड्रेस कर लूं। आपके घर का साइज छोटा है और आप उसके अंदर 20 लोग रखना चाहो तो रख लो, लेकिन वो लोग करेंगे क्या? ठीक है, those people will not be able to reside because the size of the house is small and the size of the house is defined by the number of data lines you have, and number of homes is defined by the address lines. This is how a microprocessor is created. Okay, now let us get back to the presentation. This is what it is saying. The entire chip will contain 2 raised to power n cross m bits. ये m bits ये हैं जो आपकी डेटा लाइंस डिफाइन करती हैं कि आप बिट को एड्रेस कर सकते हो, बाइट को एड्रेस कर सकते हो, वर्ड को एड्रेस कर सकते हो, किसे कर सकते हो. एंड n is number of address lines that will be required for addressing. इसे पढ़ोगे तो ठीक से समझ आएगा. अब माइक्रो प्रोसेसर के साथ आप किस किस टाइप की मेमोरी को शेयर कर सकते हो? यू कैन शेयर रोम, प्रोग्रामेबल रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, फ्लैश मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी. आपने कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हार्डवेयर का एक सब्जेक्ट रहा होगा आर्किटेक्चर का, उसके अंदर आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये सारी की सारी मेमोरीज पढ़ी होंगी. आप पढ़ना है कि जैसे रीड ओनली मेमोरी के अंदर यू कैन नॉट राइट, प्रोग्रामेबल रोम के अंदर आप मेमोरी को प्रोग्राम कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक यूजेज. आपके पास जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके अंदर आप मेमोरी को रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो. डेटा होल्डिंग तो ऑब्वियसली है ही है. तो ये सारी की सारी उस मेमोरी के अंदर यू नीड टू रीड अ ब्रीफ कि मेमोरीज किस किस चीज के लिए यूज होती हैं. although nobody is going to ask you about these kind of a memories, but yes, जब आप इन मेमोरीज को शेयर करने लगोगे, सपोज कोई आपको रोम शेयर करने का माइंड में पिक्चर होना चाहिए कि रीड ओनली मेमोरी कैन नॉट बी रिटन, तो मुझे राइट की लाइन तो शेयर नहीं करनी. पता लगे आपने रीड ओनली मेमोरी में राइट की लाइन लगा दी, which is not possible at all. This is the last topic for today's lecture, that what is the difference between static memory and dynamic random access memory. Now see difference between random access memories. We are not studying the difference between memory. Fine. स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपको सेल हैंडलिंग के लिए 6 या 4 ट्रांजिस्टर चाहिए, लेकिन डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक ट्रांजिस्टर चाहिए, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर. अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी हो तो आई कुड शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. गिव मी अ मोमेंट. इफ आई कैन शेयर यू, यस I can show you. Is that file? Static random access memory कैसी होती है? I'll show you the structure of static random access memory. Now, can you see this file? Yes, sir. Okay, this is yes, this is 2020 journal.
अब ये दिस इज अ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, काइंड ऑफ अ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. अब मैं आपको दिखाता हूं. ये तो है मेमोरी आईसी के ऊपर कैसे दिखती है. दिस इज अ लेआउट ऑफ द मेमोरी. These are two memories set together. This is more suitable for the electronics people, that how a memory is being fabricated, how it looks like. But I am more interested to show you the structure of a memory. See this. This is a 9 transistor static memory. जो मिनिमम साइज मेमोरी का होता है दैट इज ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स. आई कुड शो यू दैट ऑल्सो. See, this is a 6 transistor. This is a conventional industrial used static random access memory. Is it visible? Yes, sir. ये जो आपके पास 4 ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं P1, P2, N1 और N2, these form the core latch. और ये N3 और N4 ट्रांजिस्टर are used for reading or writing anything. Fine. ये Q and Q स्टोरेज एक मेमोरी के अंदर सिंगल बिट के अंदर. दिस इज अ सिंगल बिट. आपके पास फोन के अंदर जैसे 8 GB और 64 GB तक के कार्ड्स होते हैं. जस्ट इमेजिन दिस इज द साइज ऑफ अ सिंगल बिट ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. सिंगल बिट. This has been made on the 45 nanometer technology. Means the size of every transistor is of 45 nanometer. These days we are working. We are working means the work is going on 5 nanometer size of a transistor. Just imagine. आपके पास अगर किसी के पास अपने फोन्स हैं तो फोन का मैनुअल खोल के देखिए कि उसके अंदर जो मेमोरी इंटरनल मेमोरी है उसका साइज क्या है. दैट इज मेड अप ऑफ 5 नैनोमीटर फिनफिट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है. ये CMOS से बनते हैं. सो द सेल हैंडलिंग 1 bit requires 6 or 4 transistors each, which is too many. अब आप now you know कि 1 bit के लिए 6 ट्रांजिस्टर चाहिए, लेकिन डायनेमिक मेमोरी में एक चाहिए. फिर भी हम डायनेमिक मेमोरी यूज नहीं करते, स्टैटिक मेमोरी यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जो चाहिए उसे कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश करना पड़ता है. बट स्टैटिक मेमोरी में रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती. दूसरा, स्टैटिक मेमोरी के अंदर जब तक पावर ऑन है वो आप स्टैटिक रैम के अंदर वो डेटा को स्टोर रखेगी. पावर खत्म, डेटा खत्म. DRAM में भी यही होता है, पावर खत्म और डेटा खत्म. लेकिन DRAM को उस डेटा के अलावा कंटिन्यूस रिफ्रेश चाहिए. बार बार उस डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है. स्टैटिक मेमोरी में आपने डेटा एक बार राइट करके छोड़ दिया, ठीक है, जब तक पावर ऑन है डेटा पड़ा का पड़ा है, वो डेटा को होल्ड करता है, वो डेटा को जाने नहीं देता. इसीलिए स्टैटिक मेमोरी इज यूज्ड फॉर द कैश मेमोरी. और दूसरा, स्टैटिक मेमोरी की क्वालिटी होती है कि आप स्टैटिक मेमोरी से अगर कोई डेटा रीड करना चाहते हैं, मींस उसके अंदर कोई डेटा पड़ा, आपको डेटा फेच करना है अपने किसी यूजेज के लिए, तो एक्सेस टाइम इज वेरी शॉर्ट. इट इज इन पिकोसेकंड्स, 10⁻⁻12 seconds. But when it comes to DRAM, it is 1 million times higher. The time required is 1 million times higher. एक माइक्रो सेकंड चाहिए होता है. एक पिको सेकंड और एक माइक्रो सेकंड में 10⁻⁶ का फर्क है.
फाइन। अब ये तो ऑब्वियस है कि एक स्पेस में जहां पर स्टैटिक मेमोरी को 6 ट्रांजिस्टर चाहिए और डायनेमिक मेमोरी को एक ही चाहिए, तो डेंसिटी तो डायनेमिक मेमोरी ज्यादा ले लेती है, बट देयर आर सम स्पेसिफिक एडवांटेजेस लाइक स्पीड, लो पावर डिसिपेशन, नॉन रिक्वायरिंग ऑफ रिफ्रेशिंग और बैटरी सपोर्टिंग मेमोरी। ये सारी वो चीजें हैं which support static random access memory to be employed more in your computers and your mobiles than the dynamic random access memory. कल या नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के जो टाइप्स हैं, जैसे जैसे आपके पास रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स हैं, EPROM है, EEPROM है, इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कैसे करते हैं, उसको इंटरफेस करने का मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है दिस इज इनफ फॉर टुडे। Yes, sir. Next lecture onwards we'll study how these memories are interfaced with the memories. ठीक है जी, I'll request everyone that if you can please write down your attendance or wait, let me see if I can see your attendance here. I could see the attendance of 60 people. If you could please write down your attendance on the chat box, that will be a great help.